Assalamu alaikum. We were doing kinematics, or in kinematics, we did we were doing basically those types of question in which acceleration is constant. I mean, if acceleration is constant, then we can apply equations of motion. What are the equations of motion? V is equal to u plus at. Equations of motions are V is equal to u plus at, S is equal to half u plus v into t, S is equal to ut plus half at square, 2a, S is equal to v square minus u square. These equations are only applicable if the acceleration is constant, is uniform. Normally हर equation में 4 unknowns हैं, 4 variables हैं, 3 unknowns, 3 variables should be known to find the fourth one. Then we did displacement time, velocity time graph. The gradient of displacement time graph represent velocity. The gradient of velocity time graph represent acceleration. Area under the velocity time graph is displacement. And the most important thing कि velocity time graph positive axis पे हो तो it shows forward journey. Velocity time graph negative axis पे हो तो it shows backward journey. हमने इसके कुछ क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, लास्ट क्लास में भी हमने इसका एक क्वेश्चन आई थिंक अटेम्प्ट किया था, द क्वेश्चन 1 ऑफ दिस वर्कशीट. सो अब फर्दर कुछ और क्वेश्चंस हम करते हैं. ओके, लेट्स अटेम्प्ट क्वेश्चन 2. Question 2 is, a train starts from rest at a station A and travels in a straight line to station B, where it comes to rest. The train moves with constant acceleration 0.025 for the first 600 seconds, then with constant speed for the next 2600 seconds, and finally with constant deceleration 0.0375. So it is moving from A to B. So this is the point A, this is the point B. So A से B आ रहा है फर्स्ट, और उसने बताया कि रेस्ट से स्टार्ट किया है. सो रेस्ट से स्टार्ट किया, मीन हम थोड़ा सा मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ, अपने पास डाटा कलेक्शन हो रही है. सो स्टार्ट में वो रेस्ट पे था, इसका मतलब स्पीड इज 0. और उसने कहा कि बी पे भी वो रेस्ट पे था, वेयर इट कम्स टू रेस्ट एट बी. सो बी पे भी स्पीड 0 है. The train moves with the constant acceleration 0.025 for the first 600 seconds. So for the first 600 seconds, your acceleration is 0.025. Then with the constant speed for the next 2600 seconds, so next 2600 seconds के लिए, next 2600 seconds के लिए, the speed is constant. Constant speed का मतलब acceleration 0 होती है. जब स्पीड कांस्टेंट हो मीन एक्सेलरेशन 0 हो, स्पीड कांस्टेंट मीन आप सिंपली जो ओ लेवल में वो s इज इक्वल टू मीन आपका जो स्पीड इज इक्वल एवरेज स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस ओवर टाइम जो फॉर्मूला लगाते थे वो भी लगा सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 हो जाती है.
Okay, for the last patch it says for the last patch there is a deceleration, और वो deceleration mean acceleration is minus 0.0375. So ये information हमारे पास given है, जो मैंने एक डाटा हमने अपने पास collect कर लिया. So overall ये थ्री पैचेस में उसकी जर्नी डिवाइड हुई हुई है, और क्योंकि फुल थ्रू आउट एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो आप थ्रू आउट इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगा सकते. आप फर्स्ट पैच पे, सेकंड पे, थर्ड पे अलग अलग अप्लाई करेंगे. पार्ट वन, फाइंड द टोटल टाइम टेकन फॉर द ट्रेन टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी. जी फाइंड करें, सब ट्राई करें खुद. ए से बी टोटल टाइम फाइंड करना है. टोटल टाइम की जहां तक बात की जाए तो टाइम थ्री पैचेस का है, वो अलग अलग फाइंड करना है, वो ऐड करना है. उनमें से फर्स्ट पैच का टाइम 600 गिवन है, सेकंड पैच का टाइम 2600 वो भी गिवन है. सिर्फ लास्ट पैच का टाइम फाइंड करना है. अगर लास्ट जो पोर्शन है, लास्ट पोर्शन जर्नी, उसका अगर हमने टाइम फाइंड करना है, then equations of motion के through we should have three informations. Do we have three informations? No. हमारे पास फाइनल स्पीड है 0 और एक्सेलरेशन है. We have two things. We have two things. तो जब तक थर्ड इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं आएगी, we cannot apply equations of motion on the last patch of the journey. So फिर क्या किया जाए? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं. फर्स्ट पैच में हमारे पास थ्री इंफॉर्मेशन हैं. इनिशियल स्पीड 0 है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, टाइम 600. इसकी फाइनल स्पीड हम फाइंड कर लेंगे. और इस फाइनल स्पीड का फायदा क्या होगा कि यहाँ अगर सपोज ये फाइनल स्पीड आ जाती है 30 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ से आगे स्पीड कांस्टेंट है 30 मीन इधर भी फिर स्पीड क्या होगी, 30 होगी. सो वो लास्ट पैच के लिए, लास्ट पोर्शन ऑफ जर्नी के लिए वो इनिशियल स्पीड बन जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी पता चल. तो आप फर्स्ट पोर्शन के लिए अब आप फाइनल स्पीड फाइंड कीजिए बाय यूजिंग v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. फाइनल स्पीड फाइंड करनी है. इनिशियल 0 है, एक्सेलरेशन 0.025 एंड टाइम इज 600. बताइए व्हाट्स द फाइनल स्पीड? 15 या 50? so इसका मतलब यहाँ पे स्पीड है 15. अगर यहाँ 15 है तो आगे कांस्टेंट स्पीड है, यहाँ भी 15, इधर भी 15, इधर भी 15, हर जगह 15. सो इसका मतलब हियर इट इज आल्सो 15. So here the speed is 15. So last patch of journey के लिए the initial velocity is 15. So यहाँ से अब आप time find कर सकते हैं by again using v is equal to u plus at. Final speed is 0. Initial speed is 15. Acceleration is minus 0.0375 and time is 400. So आपको find करना था total time. So total time is 600 plus 2600 plus 400 mean 3600 seconds. नहीं, आपका ये स्टेप होना चाहिए, ये स्टेप होना चाहिए और ये स्टेप होना चाहिए. वो लिखना जरूरी नहीं है कि वो थ्रू आउट स्पीड 15 15 15 चले. देखो ये पहले 15 फाइंड करना है,
फिर उस 15 को यूज करके 400 फाइंड करना है, फिर ऐड करके 3600। जी पार्ट 1 क्लियर है सबको? ओके जी, सेकंड पार्ट कीजिए, स्केच द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द जर्नी एंड फाइंड द डिस्टेंस ए बी। जी वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्केच कीजिए। ट्राई करें आप इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जी मैं स्केच करूंगा, पहले आप ट्राई कर लें। कर लिया स्केच? ओके। सो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है, टाइम सेकंड्स में। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेवल होना चाहिए अच्छी तरह। ओके, फॉर द फर्स्ट 600 सेकेंड्स मीन टाइम आपका 0 से फर्स्ट 600 सेकेंड के लिए इट इज एक्सेलरेटिंग। सो एक्सेलरेट कर रहा है, तो इसका मतलब कि इट शुड बी लाइक दिस। ये एक्सेलरेट कर रहा है, और एक्सेलरेट करते हुए इसकी स्पीड कितनी हो जाती है? 15। सो दिस इज 15, ऐसे ही है। ये फर्स्ट 600 के लिए मैंने स्केच कर दिया। इसकी स्पीड बढ़ रही है, एक्सेलरेट हो रही है, और 0 से 15 हो गई। देन for the next 2600, for the next 2600 मीन अब यहां पे टाइम लिखना है, टाइम ड्यूरेशन नहीं लिखना। तो 600 में 2600 ऐड करेंगे, दैट विल बिकम 3200। सो 3200 तक मीन 600 से 3200 तक, नेक्स्ट 2600 तक आपकी स्पीड कांस्टेंट है, लाइक दिस इज द कांस्टेंट स्पीड। और जो लास्ट पैच था उसमें डीसेलरेट कर रहा था, ऐसे ही है। और वो टाइम हमारा 400 सेकेंड आया था। तो 400 सेकेंड मीन 3200 प्लस 400 इज 3600। तो डीसेलरेट करते हुए उसकी फाइनल स्पीड हो जाती है 0। हमने 0 तक उसको पहुंचाना है। तो आप देखिए, आपका वेलोसिटी एक्सिस 15 लेबल हुआ है, और टाइम एक्सिस 600, 3200 और 3600 दे ऑल आर
लेबल्ड। नहीं, आपकी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है ना, 600, 3200, 3600 और 50, ये लेबल होनी चाहिए। मीन सारा ये 100, 200 सारा लेबल नहीं करना। स्केच है ना, एक्यूरेट ड्राइंग तो नहीं है, स्केच। जी क्लियर है सेकंड पार्ट सबको? थर्ड पार्ट, ओ सॉरी, डिस्टेंस भी फाइंड करना है सेकंड पार्ट। ये डिस्टेंस फाइंड कीजिए। डिस्टेंस तो फाइंड करना बहुत इजी है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब स्केच हो गया तो एरिया अंडर द ग्राफ जल्दी से कर लीजिए। एरिया अंडर द ग्राफ इज द टोटल डिस्टेंस। कौन सी शेप है ये? ट्रेपीजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कर लीजिए। हम ग्रेड 7 में नहीं है कि हमें ट्रेपीजियम का एरिया करना नहीं आता, तो अब ट्राइंगल, रेक्टेंगल, फिर ट्राइंगल में डिवाइड कर करके करें, डायरेक्ट करें। ऐसे ही है ना, मतलब गलत नहीं है वो, लेकिन आप क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं? जी, टू पैरेलल साइड्स क्या हैं? एक पैरेलल साइड है 3600, दूसरी पैरेलल साइड कितनी है? 2600। सो सम ऑफ, फॉर्मूला क्या है ट्रेपीजियम का? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 3600 प्लस 2600 इनटू हाइट। हाइट क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड मीन 15। सो ये एरिया आ जाएगा, एरिया मीन डिस्टेंस ए, 46,500 मीटर। अगर कोई एरिया ऑफ ट्रेपीजियम को ट्राइंगल अलग, रेक्टेंगल अलग और रेक्टेंगल अलग से करना चाहे तो कर सकते। सो दिस इज द डिस्टेंस 46,500 meters. Okay, then the last part, find the speed of the train t seconds after leaving A. Sorry, the speed of the train t seconds after leaving A is 7.5 meter per second. State the possible values of t. ट्राई करें पहले आप लोग। स्टेट, नो वर्किंग रिक्वायर्ड, डायरेक्ट आंसर आएगा। State the possible values of t. यस, बताइए। जी, कोई बता सकता है? Ibrahim Jahan is saying 300. Yes, you are right. But this is not the only answer. It says find the possible values of t. ये 300 कैसे बताया, समझ आइए। जी देखिए, उसने कहा था द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 7.5। 7.5 यहाँ पे 7.5 है। अगर आप देखिए तो 7.5 एग्जैक्टली 0 और 15 के मिडल में आता है, ऐसे ही है ना। सो आपने इसके अगेंस्ट टाइम देखना है कि क्या होगा। अब क्योंकि फिर हम फर्स्ट दूसरे 600 दूसरे की वाले भी यूनिफॉर्म, देखेंगे ना, उसके आगे जी आगे जा। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सो फर्स्ट 600 के लिए यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है ना। अगर स्पीड 0 से 15 के मिडिल में है 7.5, तो इसका मतलब टाइम भी 0 और 600 के मिडिल में होगा, और वो क्या होगा? 300। सो एक आंसर इसका होगा 300। लेकिन स्पीड 7.5 एक और जगह पे भी हो रही है, यहां पे भी स्पीड 7.5 है। सो यहाँ पे भी यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा है। तो इधर जो टाइम होगा दैट विल बी एग्जैक्टली इन बिटवीन 3200 एंड 3600।
सो इसका मतलब द टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ टाइम आर 300 एंड 3400. 3400 is exactly in between 32 and 36. तो कोई वर्किंग नहीं है इसमें, उसने कहा था स्टेट करें वैल्यू। जी क्लियर है। जी क्वेश्चन क्लियर है, आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके गुड। ओके जी, हियर इज क्वेश्चन 3। ट्राई करें क्वेश्चन 3। क्वेश्चन पढ़ें और जरा इसका स्टार्ट लें। 3 + 3 6, 6 + 2 8 मार्क्स का ये भी क्वेश्चन है, इसके 3 पार्ट से। स्टार्ट लीजिए प्लीज। A ball moves on the horizontal surface of a billiard table with deceleration of constant magnitude t. The ball starts at A with speed 1.4 and reach the edge of the table at B 1.2 second later with speed 1.1. इसका मतलब इनिशियल स्पीड है इसमें 1.4, फाइनल स्पीड है 1.1, एक्सेलरेशन को डी कह रहा है, टाइम 1.2। ये तो बहुत आसान हो गया। एक्सेलरेशन उसे बताया हुआ कांस्टेंट है बिलियर्ड टेबल पे। सो 3 इंफॉर्मेशन है, आपको डिस्टेंस फाइंड करना है और डी फाइंड करना है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कीजिए, खुद डिसाइड करें कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई होगी, बताइए डिस्टेंस और वैल्यू ऑफ डीसेलरेशन। प्लीज खुद अटेम्प्ट कीजिए। इजी क्वेश्चन, पार्ट 1 तो एटलीस्ट इजी है। सर डिस्टेंस 0 हम ये जो क्वेश्चन है सर, इसको हम एक सेकंड सर, कैन आई सेंड यू मेरी वर्किंग, आप उसको प्लीज देख सकते हैं? हाँ जी, सेंड करें। ये v इज इक्वल टू u प्लस ए टी से आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगी, ऐसे ही है। फाइनल स्पीड है 1.1, इनिशियल स्पीड 1.4, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है और टाइम 1.2। बताइए एक्सेलरेशन आ रही है माइनस 0.25, मीन आप वैल्यू ऑफ d इज 0.25, डिसेलरेशन इज 0.25। जब एक्सेलरेशन लिखेंगे -0.25 तो डिसेलरेशन इज 0.25। और फिर अब आप 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अप्लाई करें और यहां से अब आप बताइए व्हाट इज डिस्टेंस। 2.5, 1.5 मीटर। जी डिस्टेंस और डिसेलरेशन यही है सबकी।
ओके, सेकंड पार्ट पे स्टार्ट कर दीजिए। AB is at right angles to the edge of the table containing B. The table has a low wall along each of its edges, and the ball rebounds from the wall at B and move directly towards A. ये उसका 90 डिग्री देने का पर्पस क्या था? ताकि आपको बता सके कि बॉल जिस जिस लाइन ऑफ पाथ में मूव करेगी उसी पाथ में वापस आएगी। समझ रहे हैं इसकी बात? अगर एंगल राइट एंगल ना हो, जरा एक मैं बिलियर्ड टेबल यहाँ शो करता हूँ। अगर ये एक बिलियर्ड टेबल हो, यहां से ए से बॉल इस तरफ आए, ये इसको 90 डिग्री हिट करेगा तो इसी डायरेक्शन में वापस आए। अगर ये 90 डिग्री पे हिट ना करे, ऐसे अगर करे हिट, तो इसका वो वापस इस डायरेक्शन में आए। सो बेसिकली वो 90 डिग्री इसलिए बता रहा है कि जिस डायरेक्शन में हिट करेगा उसी पाथ में वो बैकवर्ड मूव करेगा, ऐसे। सो दिस इज द पॉइंट बी। ए पे क्या इंफॉर्मेशन थी हमारे पास? वो तो हमारे पास 1.4 थी इनिशियल स्पीड। फाइनल बी पे 1.1 टाइम था। टाइम कितना था? 1.25 सेकेंड। 1.2। फिर हमने एस भी फाइंड कर लिया, वो आया आपका 1.5। डीसेलरेशन भी आप फाइंड कर चुके हैं, 0.25। अच्छा जी, अब सेकंड पार्ट कहता है ए भी तो ठीक है, राइट एंगल है उसके। AB is right angle to the edge of the table containing the B. The table has low walls along each of its edges, and the ball rebounds from the wall at B and move directly towards A. The ball comes to rest at C. The distance BC is 2 मीटर। अच्छा, एक्चुअली वो उसी पाथ में मूव कर रहा है, लेकिन मैं अलग से ड्रॉ कर दूं ताकि इंफॉर्मेशन शो कर सकूं। मीन में यहाँ पे उसको ड्रॉ अगर करूं, ये मुझे ये बताइए, रिटर्न जर्नी में ये ए से पहले रुक जाएगा या ए को क्रॉस कर जाएगा? क्रॉस कर जाएगा। उसकी रीजन, क्योंकि डिस्टेंस 1.5 मीटर था पहले ए टू बी, और अब जो डिस्टेंस बी सी है वो 2 मीटर है। तो इसका मतलब कि डिस्टेंस इज 2 मीटर। व्हाट्स द फाइनल स्पीड? वहां पे रेस्ट पे आ जाता है ना। सो फाइनली वो रेस्ट पे आ जाता है। आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द स्पीड विद विच द बॉल स्टार्ट टू मूव। जब रीबाउंड होता है तो उस पे इनिशियल स्पीड क्या है उसकी। अब अगेन अगर देखें तो हाउ मेनी इंफॉर्मेशन डू वी हैव? टू। एक डिस्टेंस है 2 मीटर और एक फाइनल स्पीड है 0। हमारे पास टू इंफॉर्मेशन हूं तो वी कैन नॉट अप्लाई इक्वेशन ऑफ मोशन, वी कैन नॉट फाइंड नेक्स्ट। कौन सी और इंफॉर्मेशन है हमारे पास? यस समीन। सर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि a ball moves on the horizontal surface of a billiard table with deceleration of constant magnitude। तो हमारी deceleration की वैल्यू बदलेगी नहीं, it'll remain 0.25। परफेक्ट, परफेक्ट। ये तभी पता चलेगा जब क्वेश्चन हम अच्छी तरह पढ़ेंगे। उसने स्टार्ट में कहा था कि a ball moves on a horizontal surface of billiard table with direct with constant with deceleration of constant magnitude। ये इसने बताया था कि डीसेलरेशन कांस्टेंट है उस बिलियर्ड टेबल पे। तो इसका मतलब जो फॉरवर्ड जर्नी में डीसेलरेशन थी वही बैकवर्ड जर्नी में भी डीसेलरेशन है। और ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ना दिया होता तो हम ऐसे ही ले ना लेते, यहाँ पे दिया हुआ है।
सो इसका मतलब यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि डी की वैल्यू रिटर्न जर्नी पे भी वही है। रिटर्न जर्नी पे डी इज 0.25। चलिए इसके लिए टाइम फाइंड कर लें फिर। नहीं, इनिशियल स्पीड फाइंड करनी है और टाइम दोनों फाइंड करना है। नहीं, तभी उसने पूछी है ना। अगर 1.1 होती, 1.1 पे उसने बॉल को हिट किया है, वापस किस स्पीड से जा रहा है वो उसने पूछी है। फाइंड द स्पीड विद विच द बॉल स्टार्ट्स टू मूव टुवर्ड्स इट। इसका मतलब वो हिट करते हुए कुछ स्पीड कम हो गई है। और अगर अगर वन हो तो हम कैलकुलेट करें 1.1 ही आ, लेकिन अगर वो पूछ रहा है इसका मतलब डीजल कुछ कम हुई है। तो हमें लगाना चाहिए 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। एक्सेलेरेशन क्या लिखेंगे? -0.25, डिस्टेंस 2 मीटर, फाइनल स्पीड 0, इनिशियल स्पीड फाइंड करनी है। चेक करें यू क्या आ रहा है, 1। सर 1। सो इसका मतलब रिटर्न जर्नी पे उसने रिटर्न जर्नी जो स्टार्ट की है वो 1 पे की है। और एंड आल्सो फाइंड टाइम, टाइम भी फाइंड कर लीजिए फिर। सो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से टाइम आ जाएगा। बताइए टाइम क्या आ रहा है? 4 सेकंड सर। 4 सेकेंड। जी। सो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई की और 4 सेकेंड आएगा। क्लियर है यहां तक सेकंड पार्ट? थर्ड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। Sketch a velocity time graph for the motion of the ball from the time the ball leaves A until it comes to rest at C, showing on the axis the values of the velocity and the time when the ball is at A, B and C. Velocity time graph बनाना है। आपको पता है A से B फॉरवर्ड जर्नी है, ऐसे ही है ना, और B टू C बैकवर्ड जर्नी है। सो हमें वेलोसिटी का पॉजिटिव एक्सिस और नेगेटिव एक्सिस दोनों चाहिए। ये हमने स्टार्ट में पता चल गया कि ए टू बी जो ग्राफ होगा वो पॉजिटिव एक्सिस पे आएगा, बी टू सी जो ग्राफ होगा वो नेगेटिव एक्सिस पे आएगा। स्केच कीजिए। जी बताइए, ए पे स्पीड उसकी क्या थी? स्टार्ट क्या किया उसने 1.4 से। सो 1.4 से स्टार्ट किया, सो दिस इज 1.4। और फर्स्ट 1.2 सेकंड के लिए, मीन 0 से लेकर 1.2 सेकंड तक वो क्या कर रहा था? डीसेलरेट उसने किया है। और डीसेलरेट होकर उसकी स्पीड कितनी हो गई? 1.1। ये मैंने देखिए ए टू बी ग्राफ स्केच कर, ऐसे ही है ना। अब मुझे बताइए नेक्स्ट ग्राफ मुझे कहां स्केच करना चाहिए? नेगेटिव एक्सिस पे, क्योंकि अब रिटर्न जर्नी स्टार्ट होने लगी है ना। तो मैं आप अपना ग्राफ डायरेक्टली यहां से नेगेटिव एक्सिस पे ले जाऊंगा, डॉटेड या सॉलिड। मैं अपना ग्राफ नेगेटिव एक्सिस पे लेके जाऊंगा। अब नेगेटिव एक्सिस पे रिटर्न जर्नी किस टाइम पे स्टार्ट हो रही है? इनिशियल स्पीड क्या थी? हमने क्या फाइंड किया? 1। सो यहाँ पे आपका ये -1 लिखेंगे।
अब स्टार्ट हो रही है रिटर्न जर्नी, और रिटर्न जर्नी में कितना टाइम लग रहा है वो आपने 4 सेकंड फाइंड किया है। सो ऑलरेडी 1.2 था, तो 1.2 में 4 ऐड करें तो इट विल बिकम 5.2, और नेक्स्ट 4 सेकंड के लिए वो डीसेलरेट होके रेस्ट पे आ जाता है। ये देखिए डीसेलरेट करके उसको रेस्ट पे लेके आ जाए। ये नेगेटिव एक्सिस पे आप देखो स्पीड जीरो हो गई है नहीं, यहाँ पे देखो स्पीड कितनी थी 1, और अब देखो स्पीड यहाँ पे कितनी हो गई है, जीरो हो गई है। नेगेटिव एक्सिस पे वो आपका जो ग्राफ ऐसा है वो उल्टा बन रहा होता है, ऐसे लग रहा होता है कि एक्सेलरेट कर रहा है, लेकिन एक्सेलरेट वो नेगेटिव एक्सिस सिर्फ बैकवर्ड जर्नी को शो करती है, रिटर्न जर्नी को। अदरवाइज स्पीड अगर आप देखें तो 1 से 0 हुई है, -1 से 0 तो नहीं हुई, 1 से 0 हुई है। वो नेगेटिव एक्सिस वो वेलोसिटी डायरेक्शन के लिए। सो दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ए पे टाइम 0 है, स्पीड 1.4, बी पे टाइम 1.2, सी पे टाइम 5.2। इंपॉर्टेंट बात, हमें पता था कि ए टू बी ग्राफ फॉरवर्ड है तो पॉजिटिव एक्सिस, बी टू सी बैकवर्ड है तो हमने नेगेटिव एक्सिस पे ड्रॉ कर दिया। जी क्लियर, एनी क्वेश्चन? ओके, इस वर्कशीट के मैं कुछ क्वेश्चंस सेंड करूंगा, वो आज आप ट्राई कीजिएगा। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हुए तो कल हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।